Hello students, welcome to my channel Gita's Biology. आज टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जोटा कि आम स्टार्ट कर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन रे क्लास 12 चैप्टर. The first question, carnivorous animals that is lion and leopard occupy the same niche, but lion predate mostly larger animals and leopards take smaller ones. This mechanism of competition is referred to as dash, जोटा कि नीट 2019 रे पढ़ी थिला. तो फर्स्ट ऑप्शन देछि कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देन देछि कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, देन देछि कि अल्ट्रुइज्म, देन रिसोर्स पार्टिशनिंग. The right answer is resource partitioning. Then second question, जोटा कि decline in the population of Indian native fishes due to introduction of Clarias gariepinus in river Yamuna can be categorized as dash. जोटा कि नीट 2019 रो क्वेश्चन. फर्स्ट ऑप्शन दैट इज alien species invention, second question option that is coexist extinction, and third option habitat fragmentation, then over exploitation. The correct answer is alien species invention. The next question जदि देखिबा that is match column 1 with column 2. column 1 रे से कौन देछि ना saprophytes, then parasites, then lichen, then mycorrhiza. Then column 2 रे जो ऑप्शन देछि symbiotic association of fungi with plant root. आमे जानि चंती कि symbiotic association that is lichen and mycorrhiza. mycorrhiza रे देखा जाए fungi सहित higher plant रो root सहित, that is the right answer is mycorrhiza. Then दिच की डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि आम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल दूच माने करेक्ट ऑप्शन इज सैप्रोफाइट्स. देन लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल, देन द राइट आंसर इज पैरासाइट्स. देन symbiotic association of algae and fungi, the right answer is lichen. Then the correct option is option, the correct option that is first one जदि देछि कि the correct option हबो कि 4. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखिबा that is which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics. The NEET 2018 रो क्वेश्चन. तो commensalism first option, second option mutualism, then third option amensalism, and fourth option parasitism. तो आम जदि देखा कि आंटीबायोटिक्स रे नॉर्मली गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे जगह जदि ग्रो करुच्ची, देन अदर ऑर्गेनिज्म बा अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने दबनी. जो टाइप रो इंटरैक्शन ऑलरेडी आम जानी कि दैट इज आमेंशियलिज्म, जोटा कि नेगेटिव एंड जीरो इंटरैक्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which of the following plants shows a very close relationship with a species of moth. moth सहित से कहूँ कि क्लोज रिलेशनशिप रे अच्छी where none of the two can complete its life cycle without the other. The correct option is yucca plant. तो फर्स्ट ऑप्शन देखला कि हाइड्रिला, देन वायोला, देन योका, देन बनाना, बट द राइट आंसर इज योका प्लांट एंड मथ रो गोटे स्पेसिफिक इंटरैक्शन अछि जहा द्वारा से लाइफ साइकिल कंप्लीट कर परिबने. तो जनकर पॉलिनेशन पई हेले आ जन पई एग लाइन पई से माने क्लोज एसोसिएशन अछंती. दैट इट नीट 2008 रो क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा दैट इज niche is dash. First option all the biological factor in the organism environment. Second option the physical space where an organism lives.
Then third option, the functional role played by the organism where it lives. Then fourth option, the range of temperature that the organism needs to live. The right answer is option 3. मन रख निज जोटा कि गोटे फंक्शनल रोल प्ले करुची बाय एन ऑर्गेनिज्म. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व गोटे कथा कहि दउची कि जेतेबेले ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होची तमे चाहिले भी गोटे पेन पेपर पाखरे रखिकी तार आंसर को लिखाओ. तो लास्ट को तुमरो स्कोर केते होची देखिकी ताको कमेंट बॉक्स रे दियो कि तुमरो स्कोर कार्ड केते होची. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. दैट इज natality refers to dash. The first it need 2018 question. The first option that is death rate, then second option that is birth rate, then third option that is number of individual entering a habitat, then fourth option that is number of individual leaving the habitat. The right answer is option 2, that is birth rate. The next question को जीवा. mycorrhiza are the example of dash, जोटा कि नीट 2017 रो क्वेश्चन. तो इथरे मु ऑलरेडी तुमको माइकोराइजा कहि दिछि जोटा कि क्लोज बा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट मीन्स डिपेंड विथ ईच अदर, जोतरे कि आमे तो फर्स्ट ऑप्शन से देछि कोन ना फंगिस्टासिस, सेकेंड ऑप्शन दैट इज अमेंशियलिज्म, देन थर्ड ऑप्शन antibiosis, then fourth option mutualism. The correct option is mutualism. The next is कि a symptom is a logistic growth curve is obtained when option 1 the value of r approaches 0, then second option that is k equal to n, then third option that is k greater than n, then k smaller than n. The right option is option 2. तो logistic growth curve से कहूँ कि asymptom that means केतेबेले से डिक्लीन करुछि, केतेबेले डिक्लीन करिबो ना जेतेबेले कैरिंग कैपेसिटी पर्यंत पहुँची जिबो, काहे ना ऑर्गेनिज्म केबे भी कैरिंग कैपेसिटी रो ऊपर को जाय परिबो नै, तापर से डिक्लीन करिबो. तो that's why the right option is k equal to n. The next question को जीवा. Plant which produce characteristics nematophore and so vivipary belongs to dash NEET 2017 रो क्वेश्चन. nematophore जदि देखिबा नॉर्मली राइजोफोरा प्लांट्स मानक पाखरे देखा जाए जो जोथरे कि सेमानकर हॉराइजॉन्टल रूट अपवर्ड माने पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक शो करे एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक शो करे, जोथरे कि बहुत सारा पोर थाए फॉर रेस्पिरेटरी पोर जोटा को कहा जाए और सेटा को नॉर्मली हम कहंती न्यूमाटोफोर. और जोथरे कि देखा जाए नॉर्मली ए माने मार्सिएबा जो माने हालोफाइल्स इज द राइट आंसर. The first one option is mesophytes, then psammophytes, then halophytes, then hydrophytes. The right option is halophytes. The next जदि देखिबा next question that is which of the following is correct for R selected species. Normally तो मैंने जानी सकी तो organism मानो को divide कराई K selected species and R selected species. The first option is large number of progeny with small size. Second option that is large number of progeny with large size. Then small number of progeny with small size. Then small number of progeny with large size. The right answer is option 1. Large number of progeny with small size. यदि K selected species पचाउछि then your right answer कौन होबो small number of progeny with large size. The next question को जिबा that is if positive sign is assigned to beneficial interaction, then negative sign to detrimental and zero sign to neutral interaction,
then the population interaction represents by positive negative refers to dash. Okay, NEET 2016 रो phase 2 रो question. तो इट देछि कि फर्स्ट देछि कि म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप तो पॉजिटिव देन अमेंशियलिज्म जदि जीवा ये तो नेगेटिव एंड जीरो देन कमेंशियलिज्म जदि जीवा पॉजिटिव एंड जीरो इंटरैक्शन देन पैरासाइटिज्म दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन. The right answer is option 4, that is parasitism. Then next question, which of the following is correctly matched? जोटा कि डी 2016 रो क्वेश्चन. फर्स्ट दे चुकी एरेनकाइमा ओपेनसिया, देन एस पिरामिड दैट इज बायोम, देन पैंथेनियम हाइड्रोफोर्स थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, देन स्ट्रैटिफिकेशन दैट इज पॉपुलेशन. तो 13 रो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखिबा, व्हेन does the growth rate of a population following the logistic model equal 0? The logistic model is given as dn by dt equal to rn 1 minus n divided by 1 minus n by k. तो नीट 2016 रो क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिछ कि व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन द बर्थ रेट, सेकेंड ऑप्शन इज व्हेन n by k is exactly 1, जेते बेले थर्ड ऑप्शन दिछ कि व्हेन n near the carrying capacity of the habitat, then fourth option that is when n by k equals 0. The right answer is option 2, that is when n by k is exactly 1. The next question को जिबा, an association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interaction, जोड़ा कि AIPMT 2015 रो क्वेश्चन. The first option is population, then second option is ecological niche, then third option biotic community, then fourth option that is ecosystem. तो इथरे से दी कि an association of individual in different type of living species अछंती but same habitat रे having functional interaction भी करछंती. The right answer is biotic community. The next question को जिबा, next question that is root plays insignificant role in absorption of water in dash. तो फर्स्ट ऑप्शन wheat, सेकेंड ऑप्शन sunflower, देन थर्ड ऑप्शन पिस्टिया, फोर्थ ऑप्शन पी. तो राइट ऑप्शन इज पिस्टिया जोटा कि गोटे aquatic प्लांट, जोटा कि गोटे aquatic प्लांट. The next question jiba, that is in which of the following interaction both partners are adversely affected. तो पुट से क्वेश्चन आसिला इंटरैक्शन उपरे, पॉपुलेशन इंटरैक्शन उपरे जोथरे कि पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड. तो इटर फर्स्ट ऑप्शन देछि कि म्यूचुअलिज्म, सेकंड ऑप्शन कंपटीशन, देन थर्ड ऑप्शन प्रिडेशन, देन फोर्थ ऑप्शन पैरासाइटिज्म. जदि म्यूचुअलिज्म ऑप्शन जीवा इटा पॉजिटिव इंटरैक्शन, टू रे जदि जीवा कंपटीशन जोटा कि नेगेटिव इंटरैक्शन, देन प्रिडेशन जोटा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन, देन फोर्थ दैट इज पैरासाइटिज्म जोटा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन. दिस कि बोथ द पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, दैट इज कंपटीशन. The next question jiba, that is the following graph depicts changes in two population A and B of the herbivores in the grassy field. A possible reason for these changes in that number of organism तुम देखु छ कि normally A धीरे धीरे decrease कर जाय छी and B रो increase कर जाय छी time अनुसार. AIPMT 15 रो question जोथरे कि first option that is population A consume the number of population B. Both the plant population in this habitat decrease,
Then third option, population B is competed more successfully for food than population A. Then population A produced more offspring than population B. The correct option is option 3, that is population B compete more successfully for food than population A. The next question को जदि जीवा, most animals are tree dwellers in a dash. AIPMT 2015 ର question, जितरे कि first option that is tropical rainforest, second option that is coniferous forest, third option that is thorn woodland, then fourth option that is temperate deciduous forest. The right option is tropical rainforest. The next question को जदि जीवा, just a person moving from Delhi to Shimla to escape the heat for the duration of hot summer. Thousands of migratory birds from the Siberia and other extremely cold northern region moved to देची एटा AIPMT 2014 रो क्वेश्चन, जो थे कि से फर्स्ट ऑप्शन दैट इज वेस्टर्न घाट, सेकेंड ऑप्शन दैट इज मेघालय, देन थर्ड ऑप्शन दैट इज कोबेट नेशनल पार्क, देन फोर्थ ऑप्शन दैट इज क्यूलाडियो नेशनल पार्क. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, दैट इज क्यूलाडियो नेशनल पार्क. देन क्वेश्चन नंबर 21, a sedentary sea anemone get attached to the shell lining of hermit crab. The association is dash. पुनः थरे से population interaction question जोटा कि NEET 2013 रो question, जो थे कि first option that is symbiosis, second option that is commensalism, and third option that is amensalism, and fourth option that is ectoparasitism. The correct option is symbiosis. The next question जदि जीवा, get attached to the lining, then the E3 question देछि कि the sedimentary sea anemone get attached to the shell lining of hermit crab. Right option symbiosis हे परिबनी, इटा normally commensalism option हम commensalism. The next question जीवा, a biologist studied the population of rat in a barn. He found that the average natality was 2050 and average mortality 2040, immigration 20 and emigration 30. The net increase in the population is NEET 2030. The first option 15, then second option 5, then 0, then fourth option that is 10. The right option is option 3, that is 0. The next question को जीवा, Cuscuta is an example of AIPMT 2012 रो question. Cuscuta is a example of dash. जिससे कि first option देचे कि ectoparasitism, then broad parasitism, then predation. Then fourth option is endoparasitism, but the right answer is ectoparasitism. Then 24 number question को जीवा, people which have migrated from the plains to an area adjoining Rotang Pass about 6 months back. AIPMT 2015 12 रो question, जो कि first option देछि कि have the usual RBC count but their hemoglobin has very high binding affinity to O2. Then second option that is have more RBCs and their hemoglobin was lower binding affinity of O2. Then third option are not physically fit to play games like football. Fourth option suffer from attitude sickness with symptoms like nausea, fatigue, etc. The right answer is option 2.
have more RBC and their hemoglobin has a lower binding affinity. यदि रिसेंट कथा कही कि जड़े चढ़ुची कि से जगह को जाऊँगी बट ये 6 मंथ बैक कथा से कहूँ जेहेतु से जगह एडजस्ट कर आडाप्टेशन कर देन धीरे धीरे से आरबीसी काउंट बढ़ी बढ़ी जाऊँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द लॉजिस्टिक 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन डैश कोटा देखिए ना लॉजिस्टिक एंड आम जानते कि ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ जदि देखा गोटे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व द AIPMT 2011 क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ऑप्शन देखिए dN/dt इक्वल टू Rn देन सेकेंड ऑप्शन देखिए कि dN/dt Rn होल टू द पावर होल रे देखिए कि n - k डिवाइडेड बाय k जो कि द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 that is dN/dt equals to Rn k minus n by k. The option 4 is the right answer. First question is the study of relationship of living organism with the abiotic and biotic component of their environment is called first option that is morphology, second option that is ecosystem, third option that is ecology and fourth option that is biotechnology. The right option is ecology. तो जो थे कि आम देखा कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट. तो यार डेफिनेशन से देछि ओनली तो बुक रे तमे देखबो कि इरा ओनली डेफिनेशन ऊपर से देछि. The next question जदि देखिबा the second question that is small animals lose their body heat very fast as compared to large animal because the first option देछि कि the intake of energy by small animal in the form of food is very less. Then second option देछि कि the surface area of small animals is less than the big animals. The third option जो देखिबा the metabolic rate of small animal is very low as compared to big animals. The last option that is the surface area of small animal is larger relative to their volume. The correct answer is option 4 जोटा कि बर्ड्समैन रूल अनुसार से कहिछि. The बर्ड्समैन रूल अनुसार से देछि कि इटा नॉर्मली द सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉल एनिमल इज लार्जर रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम. जदि कंपैरिजन करबा गोटे लार्ज साइज एनिमल एंड स्मॉल साइज एनिमल तो सरफेस एरिया जो रहइबो एनिमल्स रो स्मॉल एनिमल्स रो तो तांका रिलेटिव वॉल्यूम तुलना रे से कोन रहइबो ना बहुत स्मॉल रहइबो. तो कौन रहा वॉल्यूम तुलना रे जो साइज अच्छी जो एनिमल्स अच्छी तार लार्जर रहेगा. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दैट इज ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर एबल टू डैश. देखिए ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर एबल टू डैश. द फर्स्ट ऑप्शन इज कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. देन सेकेंड ऑप्शन दैट इज decrease their body temperature when the surrounding temperature becomes low. Then third option that is increase their body temperature when the surrounding temperature becomes high. Then fourth option that is increase their body temperature when the surrounding temperature becomes low. So it's a the first option is correct that is keep their body temperature constant. जो थे कि तमने already जो तमर टॉपिक अच्छी जदि टेम्परेचर बेस रे से मन को डिवाइड करा जाए सम आर रेगुलेटर्स देन कन्फर्मर्स अछंती एंड अदर किछि अछंती पार्शियल रेगुलेटर्स. तो जो माने कि रेगुलेटर अछंती तो से माने नॉर्मली कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. देन फोर्थ क्वेश्चन को जीवा व्हेन वी गो एट हायर अल्टीट्यूड द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. Option 1 remains unaffected. Option 2 देछि increase for O2, increase for N2 gas. Then last option that is decreases for
O2. The correct answer is decreases for O2. तो नॉर्मली जितेबाला आमे हायर अल्टीट्यूड को जानती आम बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मली जो बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी से डिक्रीज हो जाए तो नॉर्मली आरबीसी जी काउंट करवा आमे ताठू कम कौन प्रेजेंट थाए ना सेमानकर जो एफिनिटी कौन पाई ना O2 धरी रखिबार तो कम रहे। तो 5 नंबर क्वेश्चन को जदि जीवा टेकिंग स्पेसिस A as positive sign match the different interaction with species B where positive or negative or zero sign assigning the beneficial or detrimental or neutral interaction respectively। तो एथरे से जदि देछि कि स्पेसीज जोटा कि इंटरैक्शन करछि देखा छि तुमको ऑलरेडी कहि दैछि कि ए पाई जो स्पेसीज अछंती से पॉजिटिव साइन बी पाई तमे चूज करिवो तो ए जदि देबा बे स्पेसीज ए समस्त को पाखरे कोन रहइबो ना पॉजिटिव साइन रहइबो। तो फास्ट से दैछि कमेंशियलिज्म देन म्यूचुअलिज्म देन पैरासाइटिज्म देन अमेंशियलिज्म। जदि कमेंशियलिज्म देखिबा आमे जानिछंती कि पॉजिटिव एंड जीरो इंटरैक्शन यदि पॉजिटिव एंड जीरो इंटरैक्शन हुए ऑलरेडी पॉजिटिव आम पाखे प्रेजेंट अच्छी देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट जदि जीवा कि म्यूचुअलिज्म जीवा म्यूचुअलिज्म नॉर्मली नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन होता है देन देछि कि पैरासाइटिज्म जोटा कि पॉजिटिव सरी म्यूचुअलिज्म जो इंटरैक्शन अच्छी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटरैक्शन देन आसला आमर पैरासाइटिज्म जोटा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन। जदि अमेंशियलिज्म देखिबा सेटा नॉर्मली अमेंशियलिज्म रे आमे नॉर्मली देखंती कि नेगेटिव एंड जीरो इंटरैक्शन। तो म्यूचुअलिज्म जदि जीवा ताले ऑप्शन ए देन पैरासाइटिज्म जदि जीवा देन ऑप्शन बी। तो इठी आमे देखिबा कि सीक्वेंस रे केमती देछि। तो नेक्स्ट जदि आमे जीवा तो ऑप्शन ए 1 2 3 4 देछि ऑलरेडी आमे चूज कर सचंती कि ए पाई ए कोठी रहिछि देख 2 पाई अछि तो कोठी आमे देखिबा कि ए दुईटा ऑप्शन भितर 2 अछि। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 जोथरे कि तमे देखि परिबा कि ए दैट इज करेक्ट अछि देन बी दैट इज थर्ड आई ई बी करेक्ट अछि देन सी दैट इज आई तो ई बी करेक्ट अछि। तो आउ गटे नेक्स्ट रहला कि तमरो अमेंशियलिज्म जोटा कि नेगेटिव एंड जीरो इंटरैक्शन ऑलरेडी से फास्ट को से कहि कि पॉजिटिव तो या पाई हमें इंटरैक्शन बाहर कर परिबा नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दै छै कि द इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब Verhel's pill logistic growth of a population is dash जो थे कि n population density at time t देछि r देछि कि intrinsic rate of natural increase and k देछि carrying capacity। तो कैरिंग कैपेसिटी जदि देखिबा हमें नेक्स्ट तो यार जदि फर्स्ट ऑप्शन देखिबा dn by dt इक्वल टू rn k minus n डिवाइडेड बाय k। तो नेक्स्ट ऑप्शन जदि देखिबा dt by dn इठी तो ऑप्शन ऑलरेडी इनकरेक्ट अछि dn by dt को dt by dn देन नेक्स्ट ऑप्शन देछि कि dt ये भी dt by dn देछि देन dn by dt एठी हमें देखिबा कि dn by dt इक्वल टू rn ए पर्यंत ठीक अछि बट देन लास्ट जो अछि k डिवाइडेड बाय k minus n इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखिबा तो ऑलरेडी हमें एठी क्वेश्चन नंबर दे देबा क्वेश्चन नंबर तो 7 नंबर क्वेश्चन जदि देखिबा आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन देखैछि व्हिच वन रिफ्लेक्ट्स द एक्सपैंडिंग स्टेटस देखौछि और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कोठा देखौछि। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जदि देखिबा कोटा से देखौछि तो हियर देखा से रिप्रेजेंट्स करछि तो जोटा कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव पाई देन से रिप्रेजेंट करछि रिप्रोडक्टिव देन प्री रिप्रोडक्टिव। तो तमे माने जानिछ कि नॉर्मली बेस रे रुहे जोटा सेटा को हमें कोनती प्री रिप्रोडक्टिव जोटा कि 1 बेस रे रहउछि देन रिप्रोडक्टिव दैट इज 2 देन टॉप रे जे रहउछि देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव दैट इज 3। तो एठी से देखा देखै कि
जो प्री रिप्रोडक्टिव संख्या बहुत कम अच्छी देन धीरे धीरे से कौन करुच्ची रिप्रोडक्टिव किछि बढ़ी देन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव अच्छी से बहुत अधिक हो जाइछन्ति तो ऑब्वियस कथा एठी डिक्लाइनिंग देखेबो तो नेक्स्ट ऑप्शन जदि जिबा नेक्स्ट ऑप्शन रे फर्स्ट देखै छी कि सबठु हाईएस्ट नंबर अछंती प्री देन रिप्रोडक्टिव देन पोस्ट अछि तो नेक्स्ट जदि जिबा तो नेक्स्ट ऑप्शन को जदि जिबा ना एठी भी से इनकरेक्ट देखै छी देख तमरो ऑप्शन जदि देखिबा रिप्रोडक्टिव तो रिप्रोडक्टिव संख्या से अधिक देखे रिप्रोडक्टिव हाँ रिप्रोडक्टिव संख्या अधिक देखे देन बा ऑप्शन 3 रे से देछि कि तम माने देखि पारथिबा कि ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रे सेम टाइप रा स्ट्रक्चर से तुमको देछि जो थरे कि से देखै छै कि सेम स्ट्रक्चर तो ऑप्शन 4 को जदि जीवा ऑलरेडी ये देखो तुमको को टाइप रा इंटरैक्शन ना ये तुमको स्टेबल इंटरैक्शन देखो तो फर्स्ट आमे देखिले कि जोटा कि डिक्लाइनिंग देखौतिला तो एठी जदि देखिबा कि दुईटा इंटरैक्शन से देखै छी जोटा कि दुईटा साकरे से देखै छी कि ए जो दुईटा रे गोटे सिंपल जिनिस से अछि कि ऑलरेडी पोस्ट तो कम अछि बट प्री एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलर एंड साइज अच्छी तो एठी भी इंक्रीजिंग हबनी तो राइट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन 3 जो थरे की देखा ए दिटा भितरे कौन डिफरेंस ना फर्स्ट जो बेस अच्छी से डिफरेंस अच्छे तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन देछि ना नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कि तो प्रेडेटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पेसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी बाय तो स्पेसीज डाइवर्सिटी को जी मेंटेन करुची से प्रे नुह प्रेडेटर तो 5 प्रेडेटर तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एमंग competing prey species. Then next देछि कौन increasing the intensity of competition among the competing prey species. Then देछि कि removing the non-competing prey species in the prey population. Then fourth option that is introducing the exotic prey species in the prey population. The correct option is option 1 that is reducing the intensity of competition among the competing prey species. The next question को जीवा next question कौन कहूची ना read the following statement and select the correct option. तो statement 1 रे कौन कहूची according to Gauss competitive exclusion principle two closely related species competing for same resource can coexist definitely. तो ये से दी कि तुम बुक रे देखिबो cannot coexist. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिबा स्टेटमेंट majority of parasites reduce the survival growth and reproduction of the host and reduce its population density. It is the correct option. तो अब स्टेटमेंट 2 जदि करेक्ट हुए तले आमे ऑप्शन देखिबा फर्स्ट ऑप्शन देछि कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट तो आमे देखले रॉन्ग. तो सेकेंड ऑप्शन देछि कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट देन बोथ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट देन फोर्थ ऑप्शन दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. द करेक्ट आंसर और ऑप्शन इज ऑप्शन 2 दैट इज ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा the next question ने कौन देछि ना all the anatomical adaptation of hydrophytes except dash. तो एठी से क्वेश्चन पकेछि कि adaptation of hydrophytes. तो फर्स्ट हमें जानबा कि hydrophytes कहा को कुहा जाय. तो plants grow in excess water supply then it is known as hydrophytes. तो तारो adaptation देखिबा जदी तो हाइड्रोफाइट्स रा अडैप्टेशन फर्स्ट देछि प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा इन रूट्स देन देछि कि तो इथरे से देछि कि नेक्स्ट देछि बी देछि संकेन स्टोमाटा ऑन लीफ एपिडर्मिस देन देछि कि एपिस्टोमाटिक फ्लोटिंग लीव्स देन डी ऑप्शन देछि वेल डेवलप्ड डेड मैकेनिकल टिश्यू. तो इथरे जदि देखिबा
आमे कोटा करेक्ट अच्छी तो ऑप्शन 1 रे दिछि ए ओनली देन बी एंड सी ओनली देन बी एंड डी ओनली एंड ए एंड सी ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज बी एंड डी तो बी क्वेश्चन को यदि देखिबा संकीर्ण स्टोमाटा ऑन इट से देछि कि तुमको ऑल द एक्सेप्शन दिछि ना तो एक्सेप्ट जदि देखिबा ताले हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बाहर करबा तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट से देछि ऑलरेडी बी आउट डी कहीं ना हमें एरेनकाइमा नॉर्मली प्रेजेंट था हाइड्रोफाइट्स बट संकीर्ण स्टोमाटा प्रेजेंट इन जेरोफाइट्स मान का पाखरे संकीर्ण स्टोमाटा प्रेजेंट था तो नेक्स्ट दिबा एपिस्टोमेटिक फ्लोटिंग ये भी करेक्ट अच्छी बट वेल डेवलप्ड डेड मेकानिकल टिश्यू तो नॉर्मली मेकानिकल टिश्यू रो कोनोसी आवश्यकता नाही हाइड्रोफाइट्स माने तमे जानि छ कि गोटे वाटर करेंट द्वारा भी गोटे जो एक्वाटिक प्लांट्स अछि गोटे जगह आउट जगह को भी जाय पारे तो नॉर्मली से मानकर डेड मेकानिकल टिश्यू ये भी जेरोफाइट्स रा पिक्युलर कैरेक्टर The next question को जिबा the option 3 is the correct answer then question number 11 को जिबा जोथरे के से देछि कि competition can occur competition कोठ देखा जाए between unrelated species between two related species have requirement of similar resources between closely related species then when resources is limited जदि आमे देखिबा कंपटीशन नॉर्मली जो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बा कंपटीशन भी देखा जाए एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी देखा जाए नॉर्मली इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी देखा जाए एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी देखा जाए बट ये रिलेटेड स्पेसिस पाखे भी देखा जाए पारे ओनली रिलेटेड स्पेसिस पाखे भी देखा जाए पारे तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी कहीं ना जो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज जो रिसोर्सेस लिमिटेड हम से कंपटीशन देखा जाए नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 12 को देन क्वेश्चन नंबर इट से आउर भी देखिबा व्हेन रिसोर्सेस इज लिमिटेड दिछि क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज भितरे तो जदि कंपटीशन ऑफ कोर्स हमें देखिबा चूज द करेक्ट ऑप्शन जदि देखिबा तले इठी हमें देखिबा कि ए बी सी डी सबु जगह करेक्ट होची द बेस्ट वन जदि देखिबा तो ऑप्शन ए बी सी डी सबु जगह करेक्ट हबो तो ऑप्शन डी हबो करेक्ट ऑप्शन डी जो थे कि ए बी सी डी तो ये अनरिलेटेड स्पेसीज भीतर भी देखा जाए व्हेन टू रिलेटेड स्पेसीज भीतर भी देखा जाए समटाइम्स क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज भीतर भी देखा जाए व्हेन रिसोर्सेस लिमिटेड जेतेबेले हे जाए सेतेबेले भी देखा जाए The next question जीवा next question दीची कौन ना mark the mismatch pair तो mismatch pair को देखा तो फर्स्ट ऑप्शन दीची कि से डायापस जोटा कि जो प्लैंकटन रे देखा से देन ऑप्शन 2 रे दीची रेगुलेटर दैट इज बर्ड्स देन ऑप्शन 3 रे दीची कि एस्टिवेशन जोटा कि फिश रे देखा जाए देन दीची हाइबरनेशन जोटा कि स्नेल रे देखा जाए देछि बट इट स्नेल हबनी तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर द हाइबरनेशन ने से हमें देखिबा कि सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1 तो t+1 जे देखिबा तो फर्स्ट देछि कि फर्स्ट कथा एटी nt रो देछि इटी भी nt देछि इटी भी nt देछि द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट आमे छिबा कि ऑप्शन 4 को कहीं ना आमे n+t+1 टाइम रे ए टाइम रे पर्टिकुलर से मागी छी तो nt रो हमर आवश्यकता नहीं हमको nt+1 इक्वल टू nt माने आगरु केते पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रेजेंट थिला देन b+i - d+e तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदी देखिबा ऑप्शन फर्स्ट देखिबा कि एबायोटिक एनवायरनमेंट इनक्लूड्स डैश तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड क्लाइमेटिक फैक्टर ओनली देन ऑप्शन 2 दैट इज एडाफिक फैक्टर एंड ह्यूमन पॉपुलेशन ओनली देन टोपोग्राफिक फैक्टर ओनली देन ऑल क्लाइमेटिक एडाफिक एंड टोपोग्राफिक फैक्टर द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन 4 The next question जीवा की the salinity in the part of thousands in approximately 30 to 35 in inland water or sea water or hypersaline lagoons or rivers. The correct option is option 2 that is already data present अच्छी book रे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जदि जिबा टेम्परेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बोथ लैटिट्यूडिनल एंड अल्टिट्यूडिनल distribution of organism. The above statement is exemplified by dash. The first option second is in snow leopards as they are found in Kerala. Tundra fishes as it is found in beyond the tropical latitude in ocean. Third is ki mango as it is not found in temperate countries, and fourth option is ki polar animal as they are found in Kerala forest. The correct option is option 3, that is mango. Next is ki con na 17 number question is which of the following interaction is a natural way of transforming energy fixed by the plants to higher trophic level. तो ये क्वेश्चन रु तमाने जानी पार्छ कि ये फूड चेन कथा कहूची नॉर्मली आमे फूड चेन एंड फूड वेब जेते बेले कथा कहबा ऑब्वियसली आमे जानी चंती कि तो सेठी नॉर्मली 10% लॉ देखा जाए 10% लॉ तो ये 10% लॉ हिसाब से कौन कहूची जोन का पाखर एनर्जी ट्रांसफर होची तो इटा नॉर्मली से कहूची कि प्रीडेशन कथा कहूची तो प्रीडेशन आमे जानी चंती कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन prey of predator relationship. So option 1 is positive sign, then option 2 is positive and negative sign, option 3 is positive and 0 sign, then option 4 that is negative and negative sign. The correct answer is that is option 2, positive and negative interaction. The next question ko jiba the overcome the altitude sickness, which of the following adaptation are shown by humans. तो इतने से दी कि फर्स्ट नौसिया दी देन इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन देन इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट देन डिक्रीजिंग बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन देन हार्ट पाल्पिटेशन तो इतने से दी कि तो केतोटा आम पाखरे ठीक हम दैट इज 1 रे दी कि 6 देन 2 रे दी कि 4 देन 3 रे दी कि ऑप्शन 3 दी देन 3 दी आंसर देन 4 रे दी 5. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 जदि देखा ताले आमे इटा करेक्ट हम नॉर्मली आमे जानि कि इंक्रीज हम धीरे धीरे से कहूँ कि आडाप्टेशन कौन कौन देखा जाए तो फर्स्ट जदि देखा कि इंक्रीजिंग द आरबीसी प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हम तो नेक्स्ट यदि देखा तो जो ऑक्सीजन रो जो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली धीरे धीरे कौन हम ना डिक्रीजिंग हम बस आरबीसी प्रोडक्शन देन तो ये सब ऑप्शन रे नेक्स्ट देखि कि कौन ना 19 नंबर क्वेश्चन को जीवा दैट इज द स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिफ्लेक्टेड बाय व्हिच टाइप ऑफ एज पिरामिड जदि स्टेबल पॉपुलेशन देखुचंती देन जदि नॉर्मली कोनोसी जगह स्टेबल पॉपुलेशन देखा जाए तो सेटा को कहा जाए बेल शेप्ड. नॉर्मली आमर जदि एस पिरामिड देखा जाए तीनटा टाइप रो तमरो टोटल जो स्ट्रक्चर देखा जाए 1 इज ट्रायंगुलर शेप 1 रे ट्रायंगुलर देन 2 रे बेल शेप देन 3 रे ऑन शेप. जदि नॉर्मली ऑन शेप देखो छी द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन देन जदि देउची बेल शेप दउची ताले स्टेबल पॉपुलेशन देन ट्रायंगुलर शेप जदि दउची ताले इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. The next question को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देची ना पॉपुलेशन साइज ऑफ टाइगर इन नेशनल पार्क आर मेजर्ड बाय पगमार्क द्वारा ना सेकेंड ऑप्शन दैट इज फीकल मैटर देन ऑप्शन 3 देची परसेंट कवर देन ऑल एक्सेप्ट 3. द करेक्ट ऑप्शन जदि देखिबा हमर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट कहीं पगमार्क द्वारा भी देखा जाए और फीकल पैलेट द्वारा भी मेजर करा जाए तो नॉर्मली the all except 3. The next question जदि जीवा that is 21 number question. The 21 number question कौन कहूची ना growth curve of bacterial population in lab is plotted against time. तो what will be the shape of graph जदि graph हमें देखिबा ताले shape कौन हबो तो फर्स्ट ऑप्शन देखिबा सिग्मोइड नेक्स्ट हाइपरबोलिक देन असेंडिंग स्ट्रेट लाइन देन दिछि जे शेप. आमे जानि चंती कि एठी बैक्टीरिया मानकर जदि प्लॉटेड करबा त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखासिबो. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज आल्सो नोन एज जे शेप्ड ग्रोथ कर्व. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4.
देन 22 नंबर क्वेश्चन देखिबा दैट इज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डेमोग्राफिक फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर से देखिए आउट क्वेश्चन मु रीडिंग कर दउछि कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डेमोग्राफिक फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर डैश तो सिटी देखा जाए कौन ऑप्शन 1 रे देछि कि हाई फर्टिलिटी लो और rapidly falling mortality rate rapid population growth and a very young age distribution. The next option 2 रे देछि कि high fertility, high density, rapidly rising mortality rate and a very young age distribution. The next देखिबा कि high infant mortality and low fertility, uneven population growth and a very young age distribution. The last option that is high mortality, high density, uneven population growth and a very old age distribution. The correct answer is option 1. ऑप्शन 1 जो कि हाई फर्टिलिटी रेट थी बट लो और रैपिडली फॉलिंग मोर्टालिटी मेन से कौन कहूँ ना डेथ रेट कहूँ नेक्स्ट रैपिडली पॉपुलेशन ग्रोथ होथिबो एंड वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन होथिबो। तो नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा 23 नंबर क्वेश्चन जो कि देछि कि प्रेइंग मैंटिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ डैश। तो इथे जदि देखिबा तो फर्स्ट देछि कैमोफ्लेज देछि देन मुलेरियन मिमिक्री देछि देन वार्निंग कलरेशन देछि देन सोशल इंसेक्ट देछि। द करेक्ट आंसर इज कैमोफ्लेज। तो नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन दैट इज 24 नंबर क्वेश्चन ने देछि कि which type of association is found in between entomophilous flower and pollinating agent। तमें माने जानिथिबा कि एंटेमोफिलस फ्लावर कहा को कहा जाए ना जो पॉलिनेटिंग एजेंट अच्छी तो पॉलिनेटिंग एजेंट जेमिति कि एंटेमोफिली जो माने पॉलिनेटिंग एजेंट एंटेमोफिली थांती से मन को कहा जाए एंटेमोफिलस फ्लावर को कहा जाए। तो इस टाइप रो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स अच्छी तो यार ऑप्शन जदि हमें देखिबा फर्स्ट वन इज अमेंशियलिज्म देन कमेंशियलिज्म देन कोऑपरेशन देन फोर्थ ऑप्शन दिछि को-इवोल्यूशन। द को-इवोल्यूशन इज द राइट ऑप्शन जोटा कि पॉलिनेशन पर्पस रे माने। द नेक्स्ट से देखिबा कि लास्ट क्वेश्चन दैट इज 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कहूछि कि unrestricted reproductive capacity in a population is called dash। The first one is biotic potential, option 2 that is fertility, option 3 that is carrying capacity, then option 4 that is birth rate। The correct answer is biotic potential। The correct answer called na biotic potential। Question, read the following statement। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करिबा फर्स्ट देछि कि हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी देन सेकंड देछि कि टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विथ द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वार्प्स एंड फिग ट्री देन थर्ड देछि कि इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन algae एंड fungi इन lichen देन लास्ट देछि कि क्लोज एसोसिएशन इन ग्राजिंग कैटल एंड कैटल एरगेट बर्ड। तमें माने नेक्स्ट से देछि कि फाइंड द करेक्ट ऑप्शन देखो इटी इंटरैक्शन कथा कहिछि पॉपुलेशन इंटरैक्शन रो क्वेश्चन आछि जोरा कि कमेंशियलिज्म पैरासाइटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म कथा कहूछि। तो ई तीनटा ऑप्शन पाई कोटा ठीक हबो। जदि आमे फर्स्ट देखिबा कि फर्स्ट देछि कि हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कथा आसुछि माने आमे कहा कनवा नॉर्मली पैरासाइटिज्म कथा नबा। तो से अनुसार देखिबा जदि आमे नेक्स्ट देछि कि कमेंशियलिज्म आमे जानि चंती कि ए कमेंशियलिज्म जोटा कि पॉजिटिव एंड जीरो इंटरैक्शन देन तम पाखरे अछि कोन म्यूचुअलिज्म जोथरे कि पॉजिटिव इंटरैक्शन एंड पैरासाइटिज्म जोटा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन। तो एथि जदि जीवा में द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 दैट इज द कमेंशियलिज्म रे से देछि कि ऑप्शन क्लोज एसोसिएशन इन ग्राजिंग कैटल एंड कैटल एरगेट बार जोथरे कि जनकर पॉजिटिव एंड जीरो इंटरैक्शन होछि।
देन जदि जीवा आमे सेकेंड को दैट इज पैरासाइटिज्म जीवा आई इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट जोड़ा देछि तुमको म्यूचुअलिज्म जोथरे की 3 आउ 2 तमर राइट आंसर तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन 2 द नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा में ऑप्शन 2 तो इथरे से देछि कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इथरे से देछि कि फर्स्ट देछि स्टेनोहालाइन देन यूरीथर्मल देन यूरीहालाइन देन स्टेनोथर्मल देन कॉलम 2 रे देछि कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी देन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर नॉर्मली जो जगह रे स्टेनो वर्ड आसे मीन्स एटा होची नैरो रेंज कथा से कहूची हालाइन मीन्स सलाइन तो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी तो एठी देछि कि ऑप्शन 2 पाई करेक्ट देन देछि यूरीथर्मल यूरी मीन्स वाइड रेंज ऑफ तो थर्मल मीन्स टेम्परेचर तो यार आवर ऑप्शन आई दैट इज वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तो सीरीज जदि जीवा यूरी हालाइन दैट मीन्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 देन स्टेनोथर्मल जोड़ा कि इट इज ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज आईवी तो इठी जदि हमें देखिबा ऑप्शन दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 3 रे हमें कौन देखिबा फाइंड द करेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट टू सैलिनिटी पार्ट्स पर 1000 दैट इज पीपीटी तो इथे से देखा देछि तो ऑप्शन 1 2 3 4 रे देछि कि फर्स्ट देछि कि 6 पीपीटी रु कम होतो जोटा इनलैंड वाटर देन सी वाटर को छी 40 रु 45 पीपीटी देन इनलैंड वाटर से देछि पुणी थरे 5 पीपीटी रु अधिका देन देछि कि हाइपर सैलाइन जोटा कि 100 पीपीटी रु अधिका तो एठी हमें देखिबा कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज इनलैंड वाटर रे जोटा कि करेक्ट देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन से देछि कि थिक लेयर ऑफ फैट ब्लबर्स बिलो स्किन एक्ट एज इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ हीट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डैश तो 4 नंबर क्वेश्चन ला आंसर रे फर्स्ट ऑप्शन देछि कि कंगारू रेट देन सेकंड ऑप्शन देछि कि डेजर्ट लिजर्ड देन देछि थर्ड ऑप्शन दैट इज सील देछि देन फोर्थ ऑप्शन दैट इज फिशेस देछि द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 दैट इज सील्स देन 5 नंबर क्वेश्चन को जवाब 5 नंबर क्वेश्चन रे देछि कि मिस्टर हरिनाथ visited Mono Sorobar from Delhi suddenly suffer altitude sickness. तो अल्टीट्यूड सिकनेस तुम मैंने जानी कि आरबीसी जो हिमोग्लोबिन अच्छी तार O2 धरी रखिबार जो एफिनिटीटा अच्छी से नॉर्मली कमी जाए तो इठी क्वेश्चन अच्छी कि हाउ मेनी सिम्पटम्स आर कॉज्ड बाय इट तो अल्टीट्यूड सिकनेस को डिजीज और सिम्पटम्स देखा जाए तो इथे फर्स्ट ऑप्शन दीजिए फेटिग्यू इंक्रीज ब्रीदिंग रेट देन हार्ट पाल्पिटेशन देन दीजिए नोसिया देन डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 जो कि अच्छी तीनटा करेक्ट अच्छी तो जदि तीनटा को आम देखा फर्स्ट अच्छी फेटिग्यू देन अच्छी हार्ट पाल्पिटेशन देन हम नोसिया तो यहाँ हम द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 6 से देछि कि इन द इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी स्पेसीज वन स्पेसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज सफर्ड इन डैश से कहूँ कि इट इज ए इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी जो कि वन स्पेसीज बेनिफिटेड दैट मीन्स पॉजिटिव अदर इज सफर्ड दैट इज नेगेटिव तो ये टाइप रो इंटरैक्शन कहाँ पाखरे देखा जाए आम जब पारासाइटिज्म रे देखिबा इटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव ठीक अच्छी बट आमेंशियलिज्म केस रे जदि देखिबा इटा नेगेटिव एंड जीरो इंटरैक्शन तो ये करेक्ट नो देन देछि कि ऑप्शन 2 दैट इज कमेंशियलिज्म रे हमें जानि चंती कि पॉजिटिव एंड जीरो इंटरैक्शन एंड प्रिडेशन दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन इटा तो ठीक रहउची प्रिडेशन बट कमेंशियलिज्म ताले इति ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट देन दीजिए कि ऑप्शन 3 दैट इज प्रिडेशन दैट इज ऑलरेडी हमें जानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन पैरासाइटिज्म जोटा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो ये तो हमर
ठीक ऑप्शन हबो बट आ गोटे क्वेश्चन को हमें देखिदेबा लास्ट ऑप्शन को देखिदेबा तो नेक्स्ट देछि म्यूचुअलिज्म जोटा कि पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन एंड कंपटीशन कंपटीशन रे नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म तो नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 7 रे दिछि कि इन साउथ अमेरिका लेक विजिटिंग फीमेल ग्लोज and resident fishes feed on common food the zooplanktons it is the example of dash तो दुईटा जाक स्पेसीज फीड करछन्ती काहाकू ना जोप्लांक्टन को तो एठी से कहूछ कि फर्स्ट जिनस देछि कमेंशियलिज्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन देन देछि कि कंपटीशन पॉजिटिव एंड जीरो इंटरैक्शन कंपटीशन रे नॉर्मली पॉजिटिव एंड जीरो रिलेशनशिप त न थाए कंपटीशन रे नेगेटिव एंड नेगेटिव थाए देन अछि म्यूचुअलिज्म जोटा कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ये भी ठीक अच्छी बट इठी जो इंटरैक्शन देखा जाबो दैट इज कंपटीशन नेगेटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 8 को अल्टीट्यूड सिकनेस कैन बी एक्लामेटाइज ग्रेजुअली बाय डैश तो फर्स्ट ऑप्शन देछि कि डिक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट देन देछि कि फिजियोलॉजिकली adaptation then this is increasing binding affinity of hemoglobin but the correct answer is physiological adaptation obviously altitude sickness can be तो तले फर्स्ट हमें कौन सी altitude को जाउचंती हमरा altitude sickness देखा जबा बट ग्रेजुअली जेते बेला हमें से जगह सहित एडजस्ट हो जाउचंती धीरे धीरे हमरा फिजियोलॉजिकली एडाप्टेशन हे जाउची दिन आम जीवा क्वेश्चन नंबर 9 उपरे डायरेक्ट डायग्राम को से पचारि कि ग्राफ गिवन बिलो इज शोइंग बायोम डिस्ट्रीब्यूशन with respect to annual temperature and precipitation identify A B and C तो एठी तमे जदी देखिबा कि जदी ए नंबर को हमें देखिबा तो फर्स्ट हमें देखिबा कि सी दैछि A and B and C ऑप्शन को देखिछि तुमको तो आमे इठी देखि पारिबा कि तो ए ऑप्शन रे जोटा अछि जोटी कि लो टेम्परेचर एंड लो प्रेसिपिटेशन देन बी ऑप्शन रे जोटा देखिछि सेथरे कोन देखिछि ना टेम्परेचर हाई बट जदि आमे देखिबा लो कोन अछि गोटे अछि हाई कोन अछि ना हाई अच्छी आ गोटे लो अच्छी लो कोथरे अच्छी ना लो अच्छी तार प्रेसिपिटेशन देन ऑप्शन सी जदि देखिबा जोथरे कि बोथ आर हाई तो एठी प्रेसिपिटेशन भी अधिक अच्छी एठी टेम्परेचर भी अधिक अच्छी तो नॉर्मली लो टेम्परेचर एंड लो प्रेसिपिटेशन जदि देखिबा आमे ताको कहबा आर्टिक तुंद्रा ताले ऑप्शन ए आर्टिक तुंद्रा देन बी रे जोटा अच्छी सेटा को हमें हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स इट इज अ डेजर्ट देन लास्ट वन जोटा कि टेम्परेट फॉरेस्ट हमें कहि परिबा जोटी कि हमें हाई टेम्परेचर देखिबा एंड हाई प्रेसिपिटेशन देखिबा देन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 दैट इज आर्टिक तुंद्रा डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोथरे कि हमें लास्ट रे देखले कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोटा कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेसिपिटेशन तो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 10 जोथरे कि देछि हाउ मेनी ऑफ द गिवन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन आर डेट्रीमेंटल टू बोथ द स्पीशीज मन रखि था जेते बेले से डेट्रीमेंटल कथा कहूछि दैट मीन्स एटा नेगेटिव बोथ नेगेटिव कहूछि तो ए3 से देखिबा हमें फर्स्ट ऑप्शन दिछि 1 देन 2 दिछि देन 3 दिछि देन 4 दिछि एठी केतटा ऑप्शन दिछि जेमति कि ऑरिचिड एंड बी then fig and wasps vitare then barnacles and whale vitare then goat and amundant tortoise vitare then flamingos and fish vitare then sparrow and seed vitare the correct option is option 2 तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रे दैछि कि से 11 नंबर क्वेश्चन को हमें जीवा 11 नंबर क्वेश्चन दिछि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट टू ए बायोटिक फैक्टर तो फर्स्ट दिछि कि माइग्रेट बियर सस्पेंड स्नेल तो इठी तो तुम जानि परथबे कि डायापोज जोप्लांक्टन एंड हाइबरनेशन फिश
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज डायापस जो प्लांक्टन्स। देन आमे जीवा 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन से देछि कि the logistic growth model is considered a more realistic one because resources for growth for most animal population are finite. Resource for growth becomes limiting sooner or later. Next is कि resources in a habitat are unlimited. More than one option is correct. तो एटा हबो तमरो राइट आंसर दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट हबो। नेक्स्ट इट से लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऊपर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डायग्रामेटिक देछि कि तम ग्राफिकल देछि कि तमे ऑलरेडी जानि परथबो कि तमरो गोटे डायग्राम अछि जोथरे कि ए बी सी देखैछि। तमे जानिछ कि ए जोटा कि रेगुलेटर, तो बी जोटा कि कन्फर्मर, सी जोटा कि पार्शियल रेगुलेटर। इट्स दी क्वेश्चन गिवन बिलो इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए बी एंड सी। तो गोटे साइड से देखिए इंटरनल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल जोटा कि टेम्परेचर बेसिस रे इटा से रिप्रेजेंट करछि। ओनली एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर को से नेछि। तो इथरे से देछि कि देखा तो वन ऑप्शन रे देछि ए मेंटेन्स होमियोस्टासिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स, बी 99% ऑफ एनिमल। देन देछि कि ऑप्शन 2 रे देछि ए कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली इट से ऑलरेडी भूल कहि साइले। देन से देछि कि ए क्वेश्चन नंबर हमर जदि देखिबा एटा 13 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमें देखिबा कि ऑप्शन 3 रे देखिबा बी इन इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट ओवर the limited range of environmental condition temporarily move from stressful habitat to more hospitable area. तो फोर्थ ऑप्शन रे देछि बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड algae, बी रे देछि कि नियरली ऑल द प्लांट्स। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट कहीं ना आम नॉर्मली देखती रेगुलेटर मान को होमियोस्टासिस एनिमल कहुए। देन कन्फर्म ऑलरेडी बुक रे लिखा अछि कि तुम 99% एनिमल्स केस रे देखा जाए। नेक्स्ट जीवा में क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 रे से कौन कहूची ना कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन कहूची टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज competing for different resources cannot coexist indefinitely. Then second कहूँ कि two closely related species competing for the same resource can coexist indefinitely. Option 3 रे से कहूँ कि two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely. The next is कि more than one option is correct. The correct option is option 3, that is two closely related species competing for same resource. इट से देखा देछि different resources, इट देछि से same resource पाई competing जदि करूथिबे ताले से माने अधिक दिन indefinite time पर्यंत से माने coexist हे परिबे नाही। तो नेक्स्ट आमे जीवा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन रे से कोन कहूची आर सिलेक्टेड स्पेसीज सो डैश। तो नॉर्मली आमे जानि छथि कि आर सिलेक्टेड स्पेसीज एंड के सिलेक्टेड स्पेसीज। तो ऑप्शन 1 रे दैछि हाई रेसिलियंस, देन दैछि हाई फेक्युंडिटी, देन दैछि शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, that is more than one option is correct. तो नेक्स्ट जीवा में 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन रे से कौन देछि सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट टू इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो नॉर्मली आमे इंटरैक्शन देखि छथि जोटा कि इंटर स्पेसिफिक भी देखा जाए एंड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन भी देखा जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन देछि कि नेगेटिव एंड नेगेटिव, दैट इज कंपटीशन, interaction,
देन देछि कि नेगेटिव एंड जीरो इंटरैक्शन जोटा कि अमेंशियलिज्म पाई देन देछि कि ऑप्शन 3 रे पॉजिटिव एंड जीरो जोटा कि प्रिडेशन देन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ये से देख ऑलरेडी आम जानी सारे कि आम जानी प्रिडेशन जोटा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन बट ये से देखिए कि पॉजिटिव एंड जीरो इंटरैक्शन द करेक्ट ऑप्शन द इज ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट आम जा 17 नंबर क्वेश्चन को। तो 17 नंबर क्वेश्चन रे जदि देखिबा सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म which produce a large number of small sized offspring। तो इसरे आमे जदि देखिबा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑयस्टर एंड पेलागी फिशेस। तो नॉर्मली ये भी आसी आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज ऊपर क्वेश्चन। देन आमे जिबा 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन रे से गोटे डायग्राम देखैछि जोथरे कि तमे माने देखि पारुथिबा कि ए जोटा कि जे शेप्ड ग्रोथ कर्व देखी देन जोटा कि बी जोटा कि से शो करे सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व और ए शेप्ड ग्रोथ कर्व शो करे जोटा कि इठी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं एंड टाइम नहीं देन आमे देखिबा कि इठी कोन देछि। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। सी इठी कहूछि कि फर्स्ट रे से देछि ऑप्शन 1 देछि A resources are not limiting the growth dn by dt equal to rn k minus n divided by k। next देछि कि B resources are limiting the growth dn by dt equal to r। तो next देछि कि A plot exponential जोटा कि nt equal to n0 e to the power rt। देन फोर्थ देछि कि बी प्लॉटेड लॉजिस्टिक जोटा कि dn by dt rn n minus k ये से भूल दे देला। देन ये जो ऑप्शन ए रे से नॉट लिमिटिंग फैक्टर ई 3 वे से भूल करछि। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट आमे जिबा 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन कोन कहूछि ना इकोलॉजी इज बेसिकली concerned with the 4 basic level of biological organization. Choose odd one out with respect to this। तो इथरे जदि आमे देखिबा तो फर्स्ट देछि से ऑर्गेनिज्म देन देछि पॉपुलेशन देन देछि बायोम्स देन देछि इकोसिस्टम। तो इथे आमे देखिबा जदि इकोसिस्टम इज द रॉन्ग आंसर विथ रेस्पेक्ट टू द ऑड वन को जदि चूज करिबा आमे इकोसिस्टम जिबा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एंड बायोम्स। तो नेक्स्ट जिबा आमे 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन रे से कहूछि कि फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज डेजर्ट रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा इज ड्यू टू कोन पाई वेरिएशन बा कोन पाई फॉर्मेशन होछि। तो फर्स्ट से देछि कि एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन देन इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर इट्स ड्यूरेशन टू which the biomes are exposed, then third one rainfall and snow formation, then fourth one all of these। the correct answer is all of these। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जोटा कि 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन कौन कहूछि देखि कि टेम्परेचर इज मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर बिकॉज इट रेंजेस फ्रॉम सब-जीरो लेवल इन पोलर एरिया टू 75 डिग्री इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। The next is कि it affects the kinetic of energy which regulate the physiological activity of organism। Then third option is कि it has no role in determining geographical distribution of organism। Then fourth option is कि it contributes development of unique habitats that harbors organism most relevant to it। The correct answer is option 2, that is it affects the kinetic of enzyme which regulate
physiological activities of organism. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 22 जो थी कि आमे देखिबा कन्फर्मर्स हार्ट नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स बिकॉज तो ऑप्शन 1 से देछि कि फॉर स्मॉल एनिमल्स particularly thermoregulators is energetically expensive. Then option 2 रे देछि cost and benefits of maintaining constant internal environment are taken into consideration during course of evolution. Then option 3 रे देछि heat loss and heat gain is a function of surface area. Then 4 रे देछि more than one option is correct. तो इठी तमरा correct answer is more than one option is correct. तो नेक्स्ट हमें देखिबा कि तो क्वेश्चन नंबर 23 तो क्वेश्चन नंबर 23 रे से कौन देछि ना organisms that can regulate themselves only over a limited range of environmental gradient and beyond this range become conformer are called one third homeotherms को आ जाए और regulator then third partial regulator both conformer and regulator. The correct answer is option 3 जो माने कि partial regulator. ऑलरेडी मु तुम मानक कहि सारछि कि टोटल टेम्परेचर बेसिस रे से मानक regulator and partial regulator and conformers प्रेजेंट था. देन क्वेश्चन नंबर 24 को जीवा क्वेश्चन नंबर 24 को जीवा पूर्व मु तमानक कहि दउछि कि तमनकर टोटल 25 टा क्वेश्चन रु केतटा क्वेश्चन ठीक हैला मते कमेंट बॉक्स रे जणेबा. तो नेक्स्ट में जीवा कि ए स्पीशीज हैविंग ए वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए नंबर ऑफ जेनेटिकली अडॉप्टेड पॉपुलेशन known as dash. The first option that is ecotype, then ecosphere, then ecart, then ecocline. तो इसे यदि देखिवा the correct option is ecotype. तो next last question that is 25 number question. Which of the following organism enter stage of suspended development during unfavorable condition? तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरिया एंड फंगाई देन फोर्थ द सेकेंड ऑप्शन अच्छी कि हायर प्लांट्स देन थर्ड ऑप्शन अच्छी algae देन फोर्थ ऑप्शन अच्छी जो प्लांक्टन एंड इंसेक्ट. द करेक्ट आंसर इज जो प्लांक्टन एंड इंसेक्ट.